Hello dear students, welcome to the another video lecture of the semester 2nd of MSc Microbiology for the subject that is the non-core subject MBTE23 known as nitrogen metabolism, respiration and photosynthesis. Okay, if you remember, we have started with the syllabus already in the previous lectures, and we have already completed most of the points in the syllabus. We have seen what is the nitrogen metabolism, what is nitrogen fixation, what is the difference between the nitrogen fixation and the nitrogen metabolism. We have already learned what exactly the process of the nitrogen fixation is. Okay, we have seen what are the types of the nitrogen fixation. After that, we have learned the important point of the syllabus, that was biochemistry of nitrogen fixation, in which we have seen how much of energy, how much of electrons, how much of ATPs are needed for the nitrogen fixation. Now if you remember, when we took the introduction regarding the nitrogen fixation, I have told you that plants are being incapable of fixing the nitrogen by themselves. They don't have any kind of the system that would help them to convert the atmospheric nitrogen into the ammonia. अब नाइट्रोजन की ज़रूरत क्या है या फिर अमोनिया की नीड क्या है उन प्लांट्स के लिए, तो इसके बारे में हमने स्टडी किया था दैट दे नीड द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू make the amino acids, to make the chlorophyll, to synthesize food, and almost every metabolic process is somehow related with the nitrogen only. Okay, so for that thing of matter, they need atmospheric nitrogen to be fixed. But what is the problem? That nitrogen fixation requires an enzyme, and that enzyme is not present in any eukaryotic cell. This enzyme is solely present in the bacteria, okay, or some kind of algae, which are the blue green algae, okay, like cyanobacteria. Now why is it so? So this enzyme nitrogenase, okay, that is the enzyme that is being required by the plants or by the organism for conversion of the atmospheric nitrogen, that is N2, to the ammonia. Okay, this enzyme is not present in the यूकैरियोटिक सेल, एंड वी ऑल नो, इतना तो हमें पता है, इतना हमने सीखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर प्रोकैरियोटिक सेल is not a part of the plants. Okay, plants are eukaryotic cells. Now when we talk about the nitrogenase जो एक एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में. अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये भी हमने सीखा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या, कि हम लोग मतलब प्लांट्स को क्या चाहिए कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसका कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं है. ठीक है, तो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का उनको यूटिलाइजेशन करना है, तो दे डायरेक्टली दे कांट टेक इट एंड जस्ट ग्रैब इट. ओके, फॉर दैट थिंग दे नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, सम काइंड ऑफ द असिस्टेंस. तो वो कौन उनको प्रोवाइड करता है? तो दे आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द बैक्टीरिया हियर. वो फंगाई हो सकते हैं, वो आर्किया हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो अलगी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, डिपेंडिंग. ओके, सो दे आर द वन जिनके पास है ये एंजाइम, जिनके पास है ये एबिलिटी कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 का कन्वर्जन अमोनिया में कर सकते हैं और अमोनिया को वो प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते. अब वो भी हमने स्टडी किया था कि वो प्रोवाइड वो सिम्बायोटिकली भी कर सकते हैं, नॉन सिम्बायोटिकली भी कर सकते हैं, फ्रीली भी कर सकते हैं. ठीक है, इवन सॉइल के थ्रू भी कर सकते हैं. बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़ कि ये जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है, ठीक है, आज हमें इस नाइट्रोजिनस एंजाइम के बारे में देखना है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है इन दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ द थिंग इज़ दैट कि नाइट्रोजिनस एंजाइम की आपको एक बात हमेशा याद रखनी कि दिस एंजाइम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक मेटाबॉलिज्म. आपको ये बात ध्यान में रखनी है, यानी just make it fix in your head that
nitrogenase enzyme is not at all present in the eukaryotic cell. It is the part of the prokaryotic cell. और prokaryotic cell अगर आपने सोचा है तो आपको बैक्टीरिया का जो है इमेजिनेशन पहले होना चाहिए. ओके, सो बैक्टीरिया आर दोज who have this nitrogenase enzyme in them, and they are able to convert the atmospheric nitrogen into the ammonia. ओके, तो होता क्या है कि ये नाइट्रोजनस एंजाइम जो है इसका भी एक ये है, एक रूल है कि ये एनएरोबिकली वर्क करती है. मतलब क्या कि कोई भी चीज़ एनएरोबिक है तो उसकी एक एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करता. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करता मतलब क्या कि अगर आपने गलती से उस चीज़ को, फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो एनारोबिकली अगर हम बात करें तो इफ़ दैट ऑर्गेनिज्म इज़ एनारोबिक दैट मीन्स व्हाट, द ऑक्सीजन प्लेज लाइक अ पॉइजन. ओके, प्लेज लाइक अ पॉइजन रोल. मतलब उसके लिए वो पॉइजन है और इसलिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. फॉर दैट थिंग हमें उसको ऑक्सीजन से दूर रखना है. सेम हियर कि नाइट्रोजनस भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बिल्कुल वर्क नहीं करता, एंड दैट्स हाउ फॉर दैट थिंग ऑक्सीजन को नाइट्रोजनस से दूर रखना है, तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से होगा. तो उसके लिए भी कुछ अलग अलग मैकेनिज़म्स होते हैं प्लांट्स में या फिर इन दी बैक्टीरियाज. ओके, बट अभी हमें क्या देखना है कि नाइट्रोजनस एंजाइम जो होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, एंड इम्पॉर्टेंटली उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. ठीक है, तो नाइट्रोजनस एंजाइम की अगर बात करें तो आई विल शो यू इन द स्लाइड. सो नाइट्रोजनस एंजाइम जो होता है कि कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जो क्या करता है कि ये जो होल प्रोसीजर है कि नाइट्रोजन हमें फिक्स करना है फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द अमोनिया. इट इज़ डन बाय द नाइट्रोजनस. ओके, देन सेकंड पॉइंट इज दैट दिस नाइट्रोजन इज कॉम्प्लेक्स. ये कुछ अकेली एंजाइम नहीं है. ठीक है, ये कुछ चीज़ों से बनी है, कुछ सब यूनिट से बनी है, एंड दो सब यूनिट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो उसमें होती है दो पार्ट्स. ओके, अब नाइट्रोजनस जो होती है एक पार्ट होता है उसका डायनाइट्रोजनस और दूसरा होता है डायनाइट्रोजनस रिडक्टेस. ठीक है, अब अगर हम नाइट्रोजनस की बात करें, ओके, सो एज आई टोल्ड यू इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, नाउ ये जो नाइट्रोजनस होती है उसको फंक्शन करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए उसको कुछ कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. इट मे बी द मॉलिब्डेनम, इट मे बी द वैलिडेनम, एंड इट मे बी द आयन. ओके, इन सब चीज़ों की मदद से, या फिर आई एम नॉट सेइंग कि साइमल्टेनियसली ये तीनों की ज़रूरत पड़ती है. जो भी एलिमेंट वहाँ पे यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर नाइट्रोजनस एंजाइम को नाम भी दिए गए हैं. ठीक है, अगर वो मॉलिब्डेनम यूज़ कर रहा है देन द एंजाइम विल बी कॉल्ड एज नाइट्रोजनस मॉलिब्डेनम. अगर वो वैलिडेनम यूज़ कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज द नाइट्रोजनस वैलिडेनम. ओके, देन द सेकंड वन इफ इट इज थर्ड वन इफ इट यूजेस द आयरन फॉर द फंक्शनिंग देन इट विल बी नोन एज द आयन नाइट्रोजनस. ओके, सो ये डिपेंड करता है. अभी आपकी सिलेबस में नहीं है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जनरली जो नाइट्रोजनस यूज़ होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजनस में दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया. पहला है डायनाइट्रोजनस एंड द सेकंड वन इज द डायनाइट्रोजनस रिडक्टेज. ओके, नाउ द थिंग इज दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ होता है मोस्टली एज आई टोल्ड यू द मॉलिब्डेनम इज यूज्ड. ओके, नाउ दिस नाइट्रोजनस कंसिस्ट ऑफ द टू प्रोटीन्स एज आई टोल्ड यू. फर्स्ट वन वॉज द डायनाइट्रोजनस रिडक्टेज एंड द सेकंड वन इज द डायनाइट्रोजनस. अब पहला जो कॉम्प्लेक्स है डायनाइट्रोजनस, वो कॉम्पोनेंट जिसका नाम ही क्या है, डायनाइट्रोजनस रिडक्टेज. ओके, रिडक्टेज मतलब क्या, जो कोई भी मॉलिक्यूल्स कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनेट करता है या फिर हाइड्रोजन जो होता है वो एक्सेप्ट करता है, दैट वन विल बी कॉल्ड एज द रिडक्टेज. ओके, नाउ दिस एंजाइम दैट इज द पार्ट ऑफ और द सब यूनिट दैट इज द डायनाइट्रोजनस रिडक्टेज. ओके,
मतलब क्या कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है उसके दो पार्ट से, एक डाइनाइट्रोजन रिडक्टेज और दूसरा जो है डाइनाइट्रोजनेज। ओके, जो पहला पार्ट है डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, अब उसके नाम में है कि वो क्या करने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने वाला है फॉर द रिएक्शन। ओके, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ द डाइनाइट्रोजनेज, उसका रोल क्या है कि वो जो है इट इज़ गोइंग टू, ओके आई विल शो यू हियर। सो पहला जो पार्ट है डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, वो क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने वाला है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो है डाइनाइट्रोजनेज। ओके, ओनली डाइनाइट्रोजन, डोंट गेट कंफ्यूज। पहला पार्ट कौन सा है, डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, एंड दूसरा पार्ट है डाइनाइट्रोजनेज। वो क्या करने वाला है, वो खाली पीली बस एटीपी जो है उसका जो है वी कैन से उसका ब्रेक डाउन करके इट इज़ गोइंग टू टेक दैट इलेक्ट्रॉन्स, जो हमें पहला पार्ट देने, इसको पहला पार्ट देने वाला है। ठीक है, नाउ दिस सेकंड पार्ट, ओके लेट मी इरेज दिस। जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ द डाइनाइट्रोजनेज, उसका बस इतना ही काम है कि वो हाइड्रोलिसिस करेगा एटीपी का और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेगा। ठीक है, जो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज ने दी है। नाउ एज वी डिस्कस्ड, डाइनाइट्रोजन रिडक्टेज जो पहला पार्ट है उसको बोला जाता है एफई प्रोटीन। डोंट गेट कंफ्यूज, इस पे एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि डाइनाइट्रोजन रिडक्टेज को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एफई प्रोटीन। ये जो पूरे एंजाइम है ना नाइट्रोजनेज, वो बनी हुई है यूजिंग दी टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट पार्ट इज दी एफई प्रोटीन एंड दूसरा पार्ट है एमओ प्रोटीन। एफई मतलब क्या, आयरन। ठीक है, आयरन प्रोटीन, एंड सेकंड वन इज दी एमओ प्रोटीन। एमओ प्रोटीन मीन्स व्हाट, मॉलिब्डेनम प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों पार्ट से जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनेज। और जो पहला पार्ट हम उसके बारे में देखेंगे, तो पहला पार्ट जो है वो है डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी एफई प्रोटीन। ठीक है, दूसरा पार्ट है डाइनाइट्रोजिनेज। ओके, और उसको बोला जाता है एमओ प्रोटीन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एमओ ही होता है, क्योंकि जो एमओ की जगह अगर बाई चांस वैलिप्टेनम हो या फिर कोई और हो तो उनको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो इस मुकाबले डाइनाइट्रोजिनेज इज़ बेटर, एमओ इज़ बेटर। ओके, नाउ एमओ जो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो एफई प्रोटीन होता है या फिर डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज होता है, वो एक डाइमर है। कोई भी चीज़ डाइमर है मतलब क्या, कि उसमें दो यूनिट्स होते हैं। अब ये जो है एफई प्रोटीन या फिर डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, वो ऐसा डाइमर है कि वो होमो डाइमर है। होमो मतलब कि जो दोनों डाइमर के जो दोनों पार्ट्स है, दोनों सब यूनिट्स है, वो एक ही जैसे है। ठीक है, एक ही चीज़ के है। अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा है तो बीटा बीटा। ठीक है, देन आइडेंटिकल भी है, 30 kd के है वेट में। देन ये दोनों को अटैच करने के लिए एक ब्रिज बनाया है दैट इज़ दी FeS ब्रिज। ओके, 4Fe4S ब्रिज, जो दोनों डाइमर्स है उनको होल्ड करता है। ठीक है, नाउ किसके डाइमर से, ये एफई प्रोटीन के या फिर डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज के। और जो दूसरी जो सब यूनिट है, ठीक है, ऑफ द नाइट्रोजिनेज, इट इज़ द मॉलिब्डेनम एंड इट इज़ नोन एज द डाइनाइट्रोजिनेज। ओके, नाउ ये जो दूसरा यूनिट है मॉलिब्डेनम का या फिर डाइनाइट्रोजिनेज का, वो भी एक वी कैन से एक डाइमर नहीं कह सकते इसको, एक टेट्रामर है। ओके, टेट्रामर मतलब क्या है, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। डाइमर मतलब क्या, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। सो डाइमर मतलब क्या, 2 यूनिट्स, एंड टेट्रामर मतलब क्या, 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये 4 यूनिट्स होते हैं। अब इसमें यूनिट्स कैसे होते हैं, एमओ में, एफई में तो दोनों आइडेंटिकल होते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा। ओके, यहाँ पे होता है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, मतलब ये चारों जो है, ठीक है, 2 सब यूनिट सेम है, लाइक अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा, लेकिन अल्फ़ा एंड बीटा ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ उनमें 2 यूनिट सेम है लेकिन बाकी के 2 डिफरेंट है, तो 4 यूनिट्स है, इसलिए हम इसको, आप एक ही चीज़ याद रखो कि ये टेट्रामर है। ठीक है, कौन सा यूनिट टेट्रामर है, द molybdenum unit is the tetramer and the Fe unit or the dinitrogen reductase unit is the dimer। ठीक है, अब ये जो
FeMO का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब एक डाइमर और एक टेट्रामर का एक जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी जगह पे या फिर इट इज़ अ साइट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहाँ पे एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाउ जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन होने वाली है, उसके लिए कोई जेनेटिक एलिमेंट्स लगते हैं, वो है NIF जीन्स, ओके, निफ जीन्स जो है वो हेल्प करते फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये एंजाइम बनाने के लिए, ठीक है। नाउ अलॉन्ग विद दैट रिमेंबर वन थिंग, ये जो भी प्रोसेस होती है इसके लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ते हैं, कहीं से ATPs की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो एक्चुअली रिडक्शन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आते हैं फेराडॉक्सिन से, ठीक है। फेराडॉक्सिन एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे जो नाइट्रोजन डायनाइट्रोजन रिडक्टेज है वो इलेक्ट्रॉन्स ला के वो किसको देता है, डायनाइट्रोजिनेस को, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका सोर्स कौन है फिर, फेराडॉक्सिन, ठीक है, या फिर पायरूवेट। नाउ हमने जब रिएक्शन भी देखा था, वी नो दैट 16 ATPs लगते हैं, ठीक है। एक साइक्लिक प्रोसेस है, 16 ATPs लगते हैं ओवरऑल, 8 इलेक्ट्रॉन्स भी लगते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हाई एनर्जी कंज्यूमिंग है, ये हमने स्टडी भी किया था। नाउ द थिंग इज़ दैट कि आपको रिमेंबर ये करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो हम लिखते हैं, जो पूरी रिएक्शन लिखते हैं कि अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनिया में होता है, 16 ATPs लगते हैं, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। ये सब होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आते कहाँ से, फेराडॉक्सिन से, ठीक है। और ATP कहाँ से आता है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ATP आता है फ्रॉम द रेस्पिरेशन, ओके। नाउ इन शॉर्ट इफ वी सी द रिएक्शन और द कॉम्प्लेक्स ऑफ द नाइट्रोजन इज, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, पहली चीज़ तो ये कि ये नाइट्रोजनेस से होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनेस भी क्या है, एक एंजाइम है। एंजाइम भी कैसी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है मतलब क्या कि उसमें कुछ पार्ट्स है। तो पहला पार्ट उसका है Fe प्रोटीन, दैट इज नोन एज द डायनाइट्रोजिनेस रिडक्टेस। दूसरा पार्ट है MOFE प्रोटीन, दैट इज द डायनाइट्रोजिनेस, ओके। नाउ जो पहला पार्ट है वो है डायनाइट्रोजिनेस रिडक्टेस, वो एक डाइमर है जिसमें 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स है, अल्फा एंड अल्फा, ठीक है। देन वो जो दोनों अल्फा यूनिट्स है उसको कनेक्ट किया है विद दी 4 Fe एंड 4s bond, okay, I will say bond, okay, and then it has the function of transferring the electrons, okay, from the ferredoxin to dinitrogenase, okay। ये सेकंड कॉम्प्लेक्स को एनर्जी देता है। नाउ इस पे जो है 2 बाइंडिंग साइट्स है फॉर द ATP एंड द ADP, ओके। नाउ द सेकंड मॉलिक्यूल इज द डायनाइट्रोजिनेस, जो एक टेट्रामर है। टेट्रामर मतलब क्या, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा। नाउ जो दूसरा यूनिट है वो एक मोलिब्डेनम नाम का यूनिट है, ठीक है। पहला जो है वो Fe नाम का, आयरन नाम का यूनिट है। नाउ ये जो मोलिब्डेनम यूनिट है उस पे बाइंडिंग साइट है फॉर द रिडक्टेस, क्योंकि उसको एनर्जी लगती है, उसको इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स, जो सेकंड पार्ट है दैट इज द डायनाइट्रोजनेस, उसको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन देता है, तो पहला यूनिट देता है Fe यूनिट ऑफ दी डायनाइट्रोजन रिडक्टेज यूनिट। नाउ यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे भी एक ब्रिज है, दैट इज़ दी MOFES ब्रिज, ओके। ये भी एक आई थिंक कि कनेक्ट जो किए गए हैं एक ब्रिज के थ्रू ही किए जाते हैं, ठीक है। नाउ अब ये पूरी बात हुई कि उसमें सब यूनिट्स क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है उसमें जिससे वो पूरा एंजाइम बनता है। अब बात करेंगे कि एक्चुअल में रिएक्शन होता क्या है, कि डायनाइट्रोजनेस कैसे अपने डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करके कैसे एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाउ इफ यू सी हियर, फर्स्ट स्टेप इज फॉर रिड्यूसिंग द नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, नाइट्रोजनेस रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ओवरऑल हमने उस दिन रिएक्शन भी देखी थी कि नाइट्रोजनेस को ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं टू रिड्यूस दी नाइट्रोजनेस इनटू अमोनिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज दैट at first dinitrogenase is reduced by transferring of the electrons to
डायनाइट्रोजनस रिडक्टेज, जैसे मैंने आपको फंक्शन भी बताया था कि डायनाइट्रोजनस रिडक्टेज क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स देता है किसको, सेकंड यूनिट को, दैट इज द डायनाइट्रोजनस। ना तीसरी बात ये है कि डायनाइट्रोजनस जो होता है, जो सेकंड पार्ट है मॉलिब्डेनम जो है, वो क्या, उसके पास जो है 2 बाइंडिंग साइट होती है फॉर द रिडक्टेज, ठीक है, होनी भी चाहिए क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्टेज ही देने वाला है। नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिडक्टेज टू डायनाइट्रोजनस एट ए टाइम। मतलब ये रिएक्शन एक ही बार में नहीं होती, बार बार होती है, साइक्लिक फॉर्म में होती है, जैसे हमने उस दिन भी देखा था। नाइट्रोजनस का मेन फंक्शन होता है कि उसको नाइट्रोजन जो होता है एनियन, उसके बॉन्ड ब्रेक करने का काम है। तो बॉन्ड ब्रेक करते करते हाइड्रोजन का एडिशन करना होता है उसको, ठीक है। तो ये सब करना एक ही बार में नहीं होता, पहले स्टेप में पहला बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन हमने उस दिन देखी थी। तो यही रिएक्शन यहाँ पे आपको दिखेगी, और हर रिएक्शन के टाइम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो गए, ठीक है, फ्रॉम द रिडक्टेज टू द नाइट्रोजनस, नाउ आई मीन डायनाइट्रोजनस। नाउ द fourth point is that the reduced reductase binds to the dinitrogenase and transfers the single electron oxidized form dissociates in a repeating cycle, okay। होता क्या है यहाँ पे, जो रिडक्टेज है, ठीक है, जो रेड्यूस होता है, रिडक्टेज ऑब्वियसली रेड्यूस होगा, तो रेड्यूस होने वाला जो रिडक्टेज है वो क्या करता है कि वो हर बार एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो डायनाइट्रोजनस को देता है, ठीक है, एंड उसके बाद डिसोसिएट हो जाता है। और हर बार ये स्टेप होती है, ठीक है, रिपीट हो जाती है, तब तक रिपीट होती है जब तक कि अमोनिया फॉर्म नहीं होता, ठीक है। इच साइकिल रिक्वायर्स, अब ये सब होने के लिए, अब डिसोसिएट होना है, एसोसिएट होना है, इलेक्ट्रॉन देने हैं, ये करना है, वो करना है, इतने सारे काम करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दे नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बाय यूजिंग द एटीपीज, ओके। एटीपीज कहाँ से आते हैं सबको पता है, एटीपीज कम फ्रॉम द रेस्पिरेशन। नाउ इमीडिएट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू रेड्यूस द रिडक्टेज इज रेड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन, एज आई टोल्ड यू। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, तो फेरेडॉक्सिन से आते हैं, ठीक है। नाउ अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू रेड्यूस फेरेडॉक्सिन इज पायरुवेट, एज वेल एज फेरेडॉक्सिन को रेड्यूस करने के लिए भी जो इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं वो आते हैं पायरुवेट से, ठीक है। अब पायरुवेट कहाँ से आता है सबको पता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, इफ़ यू रिमेंबर क्लियरली। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको बेसिक आपका पक्का होना चाहिए कि कौन सा एटम कहाँ से आता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट, कि पहली चीज़ क्या होगी कि आपको यही चीज़ याद रखनी कि जो नाइट्रोजनस एंजाइम है वो 2 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट वन इज द डायनाइट्रोजन रिडक्टेज एंड दूसरा है डायनाइट्रोजनस। जो पहला रिडक्टेज पार्ट है वो क्या करता है, खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम दी फेरेडॉक्सिन टू दी डायनाइट्रोजनस, जो कि सेकंड पार्ट है, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या करता है, वो एटीपी को जो है यूटिलाइज करके वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स लेके फिर वो अमोनिया फॉर्म करता है फ्रॉम दी डायनाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ओके। अब इसके सिवा एक आपको बात याद रखनी कि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फेरेडॉक्सिन से आते हैं, और फेरेडॉक्सिन के पास आते हैं फ्रॉम द पायरुवेट। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो फर्स्ट यूनिट होता है, दैट इज़ द आयरन यूनिट या फिर नाइट्रोजन रिडक्टेज, उसके ऊपर होता है एटीपी और एडीपी बाइंडिंग साइट, और जो दूसरा यूनिट है उसके ऊपर होता है रिडक्टेज बाइंडिंग साइट। सो दिस आर सम थिंग्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। एंड फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कि नाइट्रोजनस के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इट इज़ टॉक्सिक। प्लस सेकंड चीज़ ये कि नाइट्रोजनस जो है वो प्रोकैरियोट्स में आपको मिलेगी, यूकैरियोट्स में वी कांट फाइंड द नाइट्रोजनस, ओके। So this is about it. If you have any doubt, any query related to any point, we are going to take the doubt clearing session at the end of the week. So be there at the session with your doubts, okay, or even you can contact me. Thank you so much. The notes shall be provided to you soon, okay. Take care.